Hello everyone, I hope you people are doing extremely well. So let's come back to our chapter number 12, and this is the third part of the video. And just to remind you, there are two more parts of the video made before this. So just to learn the full chapter you have to go through all these three parts. Okay, let's start with the chapter on the third part of the video now. Before starting further, let's have a look that what we studied in the previous video. See, in the previous video we went through the circuit diagrams, Ohm's law, and the factors affecting resistance of any conductor. Okay, in this video we will be studying about the resistors in parallel and series, heating effects of electric current and electric power. Let's start with the topic resistors in parallel and series. First of all, let's take the resistors in series. See, when the resistors are joined from end to end, it is called in series. In this case, the total resistance of the system is equal to the sum of resistance of all the resistors in the system. Fine. जब हम कुछ रेजिस्टर्स को से 2 और 3 रेजिस्टर्स जब हम लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़. और जो भी टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबके सम को मिला के जो एक कैलकुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं द resistance in the system. Let's take an example. Let 3 resistors R1, R2 and R3 get connected in series, then the total resistance will be R1, R2 plus R3. अगर हमारे पास एक सिस्टम में 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा that will be R1, R2 plus R3. This will be the total resistance of the system. When the resistors are connected in series, the current flowing through each resistor is the same and E is equal to the total current. जब रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो हर रेजिस्टर के पास से जो करंट गुजरता है वो करंट सेम होता है and it is equal to the total current of the system. Just to explain the resistors in series, let's have this example of this picture where we have 3 resistors, say of 5 ohm, 3 ohm and 2 ohm connected in series. We can see this picture, they are connected with the battery of 10 volt and the current is flowing from the positive to the negative terminal of the battery. Now, if we want to take out the resistance, we have to add all these resistors. So we have this equation, total resistance, that is R, equals to R1 plus R2 plus R3. Okay, that is 5 ohm plus 3 ohm plus 2 ohm. This will give you 10 ohm. So this is the total resistance of this system or the circuit which we have in this picture. Now we have resistors in parallel. See, when resistors are joined in parallel, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of the reciprocal of the resistance of the resistors. Okay, जब भी हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल में लेके कैलकुलेट करते हैं. वी टेक इट इन फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल. हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं. देयर R1, R2 एंड R3. So that the total resistance will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is how we write resistance in parallel combination. The total current through the circuit can be calculated by adding the electric current through the individual resistors. अब अगर हमें करंट को कैलकुलेट करना है तो हमें सारे रेजिस्टर्स पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको टोटल करेंगे तो हमारा उस सिस्टम का टोटल करंट इनपुट निकल के आ जाएगा. Again, to explain the resistance in parallel, see we have a picture over here. हमारे पास यहाँ पे 4 resistors हैं जो parallel combination में connected हैं. See, R1, R2, R3 and R4, they are connected in parallel. Why parallel? Because they are not connected in series. They are not connected one after another in the same current flow. Current यहाँ पे divide हो रहा है. Okay, current is getting divided over here, but in series combination there is no division of current. Okay, see, we have these 4 resistors R1, R2, R3 and R4 connected in parallel, that is 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm and 40 ohm. They are connected across a voltmeter of 24 volt. Okay,
सॉरी बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, नॉट वोल्ट मीटर। सो ये एक 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है एंड ऑब्वियसली द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट। और अगर हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है या फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा 1/R1 दैट इज़ 1/10 plus 1/20 plus 1/30 and 1/40. By taking the LCM, you can easily calculate the resistance over here. So this is the pattern to calculate resistance in the parallel combination. Next we have heating effects of electric current. See, what is heating effect of electric current? It is when electric current is supplied to a purely resistive conductor. जो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ डेसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अ रिजल्ट रेजिस्टर गेट्स हीटेड। ओके, हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो जब उसमें करंट फ्लो होगा तो वो जो आपका कंडक्टर है वो पूरा हीटअप हो जाएगा। The heating of resistors because of dissipation of electric energy is commonly known as heating effect of electric current. Some examples are as follows. When electric energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated because of which it gives light. Okay, एक इसका एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब। जब भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑन करते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसमें जो फिलामेंट है दैट गेट्स हीटेड। जब फिलामेंट गर्म हो जाता है तब वो लाइट को गिव आउट करता है। इट गिव्स आउट द लाइट व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिलामेंट हीट अप क्यों हुआ, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन द जूनियर क्लासेस 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी के 2 इफेक्ट्स पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है। सो दिस इज द सेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ cause of heating effect of electric current. Why this heating effect is generated? See, electric current generates heat to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes. Okay, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हीट अप हो जाता है। फाइन, द हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर द अमाउंट ऑफ हीट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट जनरेशन उतना ही पावरफुल होगा। ओके, दस जनरेशन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। हम इस कॉन्सिक्वेंस को या फिर हम इस फिनोमेना का इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वहाँ पे हीट जनरेशन ऑब्वियसली होगा। दिस हीटिंग इफेक्ट इज़ यूज्ड इज मैनी अप्लाइंसेस। जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम एज अ वेपन और एज अ यूज़फुल फिनोमेना बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, सच इज़ इलेक्ट्रिक आयरन, electric heater, electric geyser, etc. So this heating effect is inevitable process. We cannot control it, but हाँ हम इसको in positive sense अपने benefit के लिए use ज़रूर कर सकते हैं. See, we have a picture over here of the devices which work on the principle of heating effect of electric current. First we have electric iron. हमने notice किया है कि जो electric iron है वो हीट करने के बाद ही काम करता है, जिससे हम अपने कपड़ों को इजीली प्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द केटल. दिस इज़ इलेक्ट्रिक केटल इन विच वी कैन कुक समथिंग वेरी इंस्टेंटली. जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ड्यू टू हीट ओनली. नेक्स्ट वन वी हैव प्रेशर कुकर. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रोसेस ऑफ heating effect. Then we have oven, okay, in which we can bake something. Then we have immersion heater rod. So all these appliances like electric iron, electric kettle, cooker, oven, immersion heater, or sometimes we use immersion rod also to boil the water, and especially in winter seasons, or to heat up the water. तो ये सारे डिवाइसेस हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमेना पे वर्क करते हैं. दीज डिवाइसेस हैव द मटेरियल. ये सारे डिवाइसेस उन मटेरियल से बने होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे ही ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसको
कम करने के लिए हीट प्रोड्यूस करेगा. एंड दिस इज़ हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स. नाउ वन थिंग टू कीप इन माइंड, हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ग्रेटर इज़ द हीटिंग इफेक्ट. इनके अंदर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिस भी डिवाइस में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वो डिवाइस उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा हीटअप होगी. नेक्स्ट वी हैव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, which states that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current given to the resistor. Directly proportional to the resistance for a given current and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. Okay, इसका मतलब ये है, जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ हीटिंग दिस स्टेट्स दैट किसी भी रेजिस्टर में जब हीट प्रोड्यूस होगा तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. मतलब जितना ज़्यादा टाइम हम देंगे, जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीटिंग होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीटिंग होगी, और जितना करंट फ्लो होगा उसका स्क्वायर उससे भी ज़्यादा heat produce होगा. This is the Joule's law of heating. Now let's take an example of electric bulb. Say in an electric bulb, the filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity. The filament of bulb is generally made up of tungsten metal having melting point equal to 3380 degrees Celsius, that is 3380 degrees Celsius. Now ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, एंड द टंगस्टन मेटल इज़ हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस. अब टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस है. इसका मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हमें उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट मिलेगा. नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक आयरन. द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड अप ऑफ अलॉयज having high melting point. Okay, what are alloys? First of all, see, alloys are the mixture of a metal and a metal and a non-metal, or a metal and a non-metal. Okay, so these alloys have very high resistance. The electric heater and geyser work on the same mechanism. Electric iron, electric geyser या फिर जो हमारा electric heater होता है ये same mechanism पे काम करता है. Now we have electric fuse. See, electric fuse is used to protect the electric appliances from high voltage, if any. Electric fuse is made up of metal or alloy of metals such as aluminum, copper, iron, etc. In this case, a flow of higher voltage than specified fuse wire melts and protects the electric appliances. See, how does it work? हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो एक ऐसे मेटल का बना होता है जैसे कॉपर वायर का, आयरन, लेड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता. तो अगर हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट का ओवरफ्लो होता है तो ये जो फ्यूज़ वायर है ये मेल्ट हो जाती है. जैसे ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होती है वैसे हमारे घर का सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही घर का सर्किट ब्रेक होगा तो फिर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है उनमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है और उससे कोई भी शॉर्ट सर्किट जैसा सीन नहीं होता है. तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़. नाउ फ्यूज़ ऑफ 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस. जो भी डोमेस्टिक पर्पसेस है घर के लिए हैं उनमें 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 4, 5 और 10 एम्पेयर के इलेक्ट्रिक करंट्स तक यूज़ हो सकता है. Now we have electric power. This is the last topic of this chapter. So, electric power is the rate per unit time at which electrical energy is transferred by an electric circuit. Okay, what is electrical power? Electric power क्या है? See, electric power एक वो rate है according to the time जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सर्किट में सप्लाई हो रही है. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक सर्किट में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ टू से कि हाँ इस पर्सन में इतनी पावर है, आई मीन इस टाइम पे इतनी पावर है. ओके, सो बाय सेइंग दिस वी मीन दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस इंसान के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है,
कितनी एनर्जी है. सो सेम हियर, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सर्किट और इट इज़ द energy of that electric circuit. The SI unit of power is watt, that is 1 joule per second. Now, electric power is usually produced by electric generators but can also be supplied by source such as electric batteries. It is usually supplied to businesses and homes as domestic mains electricity by the electric power industry to an electric power grid. तो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कैसे होती है? इट इज़ जनरली प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी से. ओके, कई बार पावर कट हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की भी हेल्प लेते हैं, या फिर हम स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में जनरेट करना हो तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ द बैटरीज ऑल्सो. और वी हैव द पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जहाँ पे हमारे घर में सप्लाई आती है. जिस प्लेस से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से बोलते हैं. ओके, एंड द सप्लाईज कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड. सी, electric power can be delivered over long distances by transmission lines and uses of appliances such as motion, light or heat with high efficiency. अभी जो stored electric power है या फिर electrical energy, इसको हमें हर घर तक या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक डिलीवर करना है तो हम इसको ट्रांसमिशन लाइन से, जो हम ये इलेक्ट्रिकल वायर्स देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं, एक्सटेंशन वायर्स बोलते हैं जिनको हम, जो हमें ये लार्ज स्टैचू लाइक टावर जैसे पोल से लाइंस निकलती हुई दिखती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स निकलते हुए दिखते हैं. दीज ऑल आर द ट्रांसमिशन लाइंस. दे आर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कैरिंग इलेक्ट्रिक पावर इन इट. सो टू डिलीवर इट एवरी प्लेस, हर घर में, हर दुकान में, अलग अलग जगहों पे पहुंचाने के लिए हमें इन ट्रांसमिशन लाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है. नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट. Okay, it is denoted by the capital W, and 1 watt equals to 1 volt into 1 ampere. Okay, मतलब electrical power 1 volt into 1 ampere में हमने convert किया है. Okay, because we are taking energy from one place to another also. Okay, and 1 kilowatt or 1 kW equals to 1000 watt. Consumption of electricity अब हम कैसे measure करते हैं? How do we say that हाँ इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुई, स्पेशली ऑन लार्ज स्केल और कमर्शियल एरिया. वी कैलकुलेट इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट पर आवर. पर आवर के अकॉर्डिंग कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है. ओके, सो वी सी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 watt into 1 hour. That is 1 unit equals to 1000 watt into 3600 seconds. And 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10, 106 watt second equals to 3.6 into 162 joules. These are all the tricks or the methods to convert one form of electric power to another. So now that's all for this video. And just I mentioned you earlier also, there are 2 more parts of this chapter, that is part 1 and part 2 also. This was the 3rd part. So if you want to like gain the full knowledge of the full chapter, you should watch both the 2 parts also. And I hope that every doubt and every problem of yours has been solved by this. So for now, thank you and keep watching. Thank you very much.